boy talking to a girl in college. While making new friends, there are usually three parts of the conversation you will have with your new friend. The first is the greeting. In this part, you and your new friend will greet each other and tell each other your names. The second part is the conversation. Sometimes the conversation is a small talk, and sometimes the conversation is about important matters. The third part of the conversation is the leave taking. In this part, you tell your new friend that you are happy to meet him and that you must end the conversation. A first year student. Excuse me, did Mr. Kohli take class yesterday? Girl. Do I know you? Boy. I am Kunal Kapoor. We study in the same class. Sorry for the botheration. I didn't come to college yesterday. Girl. Mr. Kohli took the class. Kunal. After a pause. Did you attend his class? Girl. Yes. Kunal. You must have taken notes. If it is not much of trouble, could I have a look at them? Mr. Kohli is my favorite lecturer. I never miss his classes. Girl. He is my favorite too. Let me see where his notes are. By the way, I am Sanjana Garg. Kunal. Glad to meet you, Sanjana. Sanjana. Opening a page in the notebook. Here are the notes. Kunal. Thanks. I will give it back to you in a short while. If you don't mind, let's make a pact. Sanjana. What pact? Kunal. Whenever one of us misses Mr. Kohli's lecture, the other one will help him or her with notes. Sanjana. Agreed. It's time for class now. Bye. Kunal. Bye. होटल में कमरा लेने हेतु रिसेप्शनिस्ट से वार्तालाप. छोटे वार्तालाप का प्रयोग पार्टी या दूसरे अवसरों पर लोगों से मिलने के दौरान किया जाता है. छोटा वार्तालाप भी कई बार अधिक रुचिकर हो जाता है. छोटे वार्तालाप में मुहावरों का उचित प्रयोग वार्तालाप को धारा प्रवाह बनाने में मदद कर सकता है. आदमी. रिसेप्शनिस्ट से. एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ रोशन तनेजा के नाम से कोई कमरा बुक है? रिसेप्शनिस्ट. एक सेकंड महाशय, रजिस्टर में देखकर. नहीं महाशय, इस नाम से होटल का कोई कमरा बुक नहीं है. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आदमी. मेरा नाम रोशन तनेजा है. मैंने यहाँ एक कमरा बुक कराया है. रिसेप्शनिस्ट. क्या आप मुझे कमरा नंबर बता सकते हैं? मिस्टर तनेजा. नहीं, मेरे पास कमरा नंबर नहीं है. रिसेप्शनिस्ट. बात यह है कि वास्तव में आपने बुकिंग की पुष्टि नहीं की थी. मिस्टर तनेजा. मैं समझ गया, मगर अब क्या करें? मुझे एक कमरा चाहिए. ये बेहद जरूरी है. रिसेप्शनिस्ट. मुझे देखने दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मिस्टर तनेजा. प्लीज. रिसेप्शनिस्ट. कुछ क्षण रुककर. महाशय, अभी कोई कमरा खाली नहीं है. कृपया बैठ जाइए. लेकिन क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं? एक यात्री कमरा छोड़ने वाला है. आपको छोटा कमरा चाहिए, है ना? कृपया बैठिए. मिस्टर तनेजा. ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा. इंतजार करते हैं. रिसेप्शनिस्ट. यहां मिस्टर तनेजा, आप भाग्यशाली हैं. एक ग्राहक अभी कमरा छोड़ गया है. आपका कमरा नंबर 203 है. क्या आप ये फॉर्म भर देंगे? ये लड़का आपको आपके कमरे तक जाने में आपकी मदद करेगा. वो आपका सामान भी उठा ले जाएगा. आपका कोई परिचय पत्र है? मिस्टर तनेजा. फॉर्म भरते हैं. ये रहा मेरा आईडी. धन्यवाद. रिसेप्शनिस्ट. आपका यहाँ स्वागत है. Conversation with a receptionist in hotel. Small talk is used while meeting with the people, etc. to be kind and get along with others at the events. Hopefully, small talk leads to more interesting conversations. However, the ability to small talk and use appropriate phrases can help get the conversation flowing. Man. To the hotel receptionist. Excuse me, is there a room booked in the name Roshan Taneja? Receptionist. One moment, sir. Checks. No, sir. I'm sorry. There is no such booking. May I know your name, sir? Man. I am Roshan Taneja. I myself booked a room here. Receptionist. Can you tell me the room number? Mr. Taneja. No, I don't have it. Receptionist. That is it. Actually, sir, you didn't confirm the booking. Mr. Taneja. I see. So what happens now? I want a room and it is urgent. Receptionist. Let me see.
What can I do for you? Mr. Taneja, please. Receptionist, after a while. Right now, there is no room vacant, sir. I am sorry. But should you wait a while? One customer is about to check out. You want a single room, isn't it? Please have a seat. Mr. Taneja, it's all right. I'll wait. He waits. Receptionist, here, you are Mr. Taneja. You are lucky. The customer has checked out. Yours is room number 203. Will you please fill up this form? This boy here will escort you to your room. He will also carry your luggage. Have you an ID card? Mr. Taneja, filling in the form. Here is my ID and thanks. Receptionist, you're welcome. बैंक में खाता खुलवाने के दौरान वार्तालाप में विनम्रता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को एक और तो सुनने की उदारता होनी चाहिए और केवल सुनने भर की ही नहीं, बल्कि दूसरा व्यक्ति जो काम की बातें कह रहा है उसे समझने की भी आवश्यकता होती है। ग्राहक एक बैंक कर्मचारी से, महाशय, मैं एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, मुझे इस प्रक्रिया की जानकारी दें। कर्मचारी आवेदन पत्र देकर, आप कहाँ रहते हैं? ग्राहक लक्ष्मी नगर में। कर्मचारी ओके, इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या करंट अकाउंट? ग्राहक सेविंग। कर्मचारी संयुक्त या एकल? ग्राहक एकल। कर्मचारी ठीक है, मैं इससे जुड़े अन्य जरूरी कागज पर काम करता हूं। आप ये 2 कॉलम देख रहे हैं। आपको प्रत्येक कॉलम के लिए, जैसे घर के पते के लिए बिजली का बिल या MTNL फोन का बिल, दूसरे कॉलम के लिए आपकी इलेक्शन ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि कागजात चाहिए। ग्राहक अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे कितने रुपए जमा कराने होंगे? कर्मचारी क्या आपको चेकबुक की सुविधा भी चाहिए? ग्राहक हाँ। कर्मचारी आप 1000 रुपए से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपका अकाउंट खुलने के लिए 10 से 15 दिन के बाद पोस्ट द्वारा आपको चेकबुक मिल जाएगी। ग्राहक क्या मुझे ATM कार्ड मिल सकता है? कर्मचारी क्यों नहीं, इससे संबंधित कॉलम में टिक लगा दीजिए। चेकबुक की तरह कुछ समय के बाद ये आपको मिल जाएगा। ग्राहक फॉर्म को पढ़ता है। इसमें 2 गवाह और एक व्यक्ति जिसका इस बैंक में पहले से ही अकाउंट हो, उसके द्वारा गारंटी दिए जाने के बारे में भी लिखा है। कर्मचारी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जिसका अकाउंट पहले से यहाँ हो और वो आपको जानता भी हो, उसके दस्तखत और अकाउंट नंबर की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अपने पड़ोस में जाकर गवाहों का इंतजाम करें। आपके आवेदन फॉर्म को स्वीकार करने तथा 1000 रुपए जमा किए जाने के बाद आपके नाम पासबुक जारी की जाएगी। ग्राहक धन्यवाद महाशय। कर्मचारी ठीक है, सावधानी पूर्वक ये आवेदन पत्र भरें और आपके 2 फोटोग्राफ की जरूरत है। आपको एक फोटो अपने आवेदन फॉर्म पर चिपकाना है और दूसरा आपके पासबुक पर चिपकाया जाएगा। ग्राहक आपको पुनः धन्यवाद महाशय। बैंक सिनेरियो फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। A conversation demands great generosity. On the one hand, it demands the generosity of listening, and perhaps not just of listening, but of assuming that the other person is saying something of value, something worth listening to. Customer to a bank employee, Sir, I would like to open a bank account. What is the procedure? Employee gives him an application form. Where do you live? Customer in Lakshmi Nagar. Employee okay. Please read this form very carefully. Do you want to open savings or current account? Customer savings. Employee joint or single? Customer single. Employee okay. Here I will work the relevant papers. You see 2 columns here. You will have to bring a document for each column for address proof. And for example, from this column, you can bring an electricity bill or MTNL phone bill. For the other column, you can bring your election ID card or driving license or passport. Customer how much will I have to deposit for opening the account? Employee do you want a checkbook as well? Customer yes. Employee you have to open the account with 1000 rupees. You will get the checkbook by post after 10 or 15 days from the date you open the account. Customer can I have an ATM card also? Employee why not? Just tick at the relevant column like checkbook
You will get it after some time. Customer reads the form. It says 2 witnesses are needed and a person whose account is in this bank. Employee: yes, that is very important. A person who has his account here must be known to you. His signature and account number will be needed. Witness you can arrange from your neighborhood after your form is accepted and you have deposited ₹1,000 and you will be issued the passbook. Customer: thanks, sir. Employee: that's all right. Fill in the form carefully and 2 photos will be needed. One you have to affix on the form and the other will be pasted on your passbook. Customer: thanks again, sir. बैंक में यानी इन द बैंक इस प्रकार के वार्तालाप विषय के ऊपर निर्भर करते हैं, फिर भी व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक संक्षिप्त और केवल काम की बातें ही पूछनी चाहिए। ग्राहक और बैंक कर्मी यानी कस्टमर और बैंक ऑफिसर के बीच की वार्तालाप। ग्राहक: क्षमा कीजिए महाशय, मैं इस बैंक में बचत खाता खोलना चाहता हूं। कस्टमर: एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन दिस बैंक। बैंक कर्मी: ठीक है जी, मैं आपको एक आवेदन पत्र देता हूं। बैंक ऑफिसर: थैंक्स सर, आई एम गिविंग यू एन एप्लीकेशन फॉर्म। ग्राहक: इसे कैसे भरना है महाशय? कस्टमर: सर, हाउ डू आई फिल इट? बैंक कर्मी: इसे अच्छी प्रकार से पढ़ने के पश्चात सही ढंग से भरिए। बैंक ऑफिसर: रीड इट केयरफुली एंड देन फिल अप इन करेक्ट मैनर। ग्राहक: इस पत्र के साथ और कुछ दस्तावेज देने हैं क्या? कस्टमर: आर सम डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन? बैंक कर्मी: इस आवेदन पत्र के साथ 1,000 रुपए जमा करें। बैंक ऑफिसर: मेक अ डिपॉजिट ऑफ ₹1,000 अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन। ग्राहक: और कुछ महाशय? एनीथिंग एल्स सर? बैंक कर्मी: हमारे एक पुराने बैंक ग्राहक का आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर जरूरी है। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड और ऑथेंटिकेटेड बाय अ कस्टमर हैविंग अकाउंट इन दिस बैंक। ग्राहक: इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? बैंक कर्मी: कुछ नहीं, वो आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करेगा बस। बैंक ऑफिसर: नथिंग, ही विल जस्ट पुट हिज सिग्नेचर ऑन इट। ग्राहक: इसके बाद आप पासबुक देते हैं क्या? डू यू इश्यू अ पासबुक आफ्टर दिस? बैंक कर्मी: हाँ जरूर, यस श्योर। ग्राहक: मेल ट्रांसफर का क्या उपयोग है? हाउ इज मेल ट्रांसफर बेनिफिशियल? बैंक कर्मी: ये डीडी से बहुत आसान है। इट इज सिंपलर देन अ डीडी। अब आप यहाँ नगद जमा करोगे तो वो सीधा आपके खाते में जमा हो जाता है। इफ यू डिपॉजिट एनी कैश, इट गेट्स क्रेडिटेड डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। ग्राहक: मैं एक जमीन खरीदना चाहता हूँ, आपके बैंक में ऋण सुविधा है क्या? आई वॉन्ट टू परचेज अ प्रॉपर्टी, डज योर बैंक एक्सटेंड लोन फैसिलिटी? बैंक कर्मी: आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको ऋण मिल जाएगा। फिल दिस फॉर्म, लोन विल बी एक्सटेंडेड। ग्राहक: गहनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास लॉकर की सुविधा है क्या? डू यू हैव लॉकर फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ ज्वेलरी? बैंक कर्मी: हाँ, हमारे बैंक में लॉकर की सुविधा है। यस, वी प्रोवाइड द लॉकर फैसिलिटी इन आवर बैंक। नाई की दुकान में यानी एट सैलून। इस प्रकार के वार्तालाप छोटे होते हैं। एक नाई को अपने ग्राहकों के प्रति विनम्र तथा आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। यहाँ प्रश्नात्मक एवं आदेश संबंधी वाक्यों का प्रयोग करें। कस्टमर और बार्बर यानी ग्राहक और नाई के बीच वार्तालाप। ग्राहक: बाल काटने के कितने रुपए लेते हो? कस्टमर: हाउ मच डू यू चार्ज ऑफ हेयर कट? नाई: 40 रुपए। बार्बर: ₹40 ओनली। ग्राहक: क्या 40 रुपए? इससे तो बिना बाल कटाए ही अच्छा है। वॉट? ₹40? इट इज बेटर टू हैव द हेड अनशेव्ड। दाढ़ी बनाने का कितना लेते हो? हाउ मच फॉर शेविंग? नाई: 10 रुपए। ₹10 ओनली। ग्राहक: ये सब देखकर ऐसा लगता है गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाऊं। इट अपीयर्स आई शुड बिकम अ हेरेटिक बाय लीविंग बिहाइंड द डोमेस्टिक लाइफ। मेरे बाल कम करो। ट्रिम माई हेयर, मेरे बाल काटिए। कट माई हेयर, इसके साथ दाढ़ी भी बनाओ। डू शेव अलोंगसाइड, दाढ़ी बनाने के समय शेवर, ट्रिमर जैसे यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना। वाइल शेविंग, अवॉइड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक शेवर एंड ट्रिमर। मेरे बाल कुछ कुछ झड़ रहे हैं। माई हेयर इज अ बिट फॉलिंग।
नाई, ये परंपरा खानदानी है शायद। Perhaps it is genetic. बाल बढ़ाने के लिए कुछ किया है क्या? Did you do anything to increase hair growth? ग्राहक, कई इस्तेमाल किए मगर फायदा कुछ नहीं मिला। Used many. There was no improvement. तुम्हारा उस्तरा तेज नहीं है। Your razor is not sharp. दाढ़ी बनाते समय खरोंच नहीं लगनी चाहिए। There should be no scratch during shaving. मेरी मूछें भी ठीक करो। Clip my mustache. तुम्हारे उस्तरे ने काट दिया है। Your razor has caused a cut. नाई, वहां पर थोड़ी फिटकरी लगा दूंगा। I will rub alum there over the cut. ग्राहक, सिर पर थोड़ा तेल लगा दो। Apply a bit of oil on my head. मेरे नाखून काट दो। Trim my nails. सवेरे कितने बजे दुकान खोलते हो? What time do you open your shop in the morning? नाई, रविवार को बहुत भीड़ रहती है। There are a lot of customers on Sunday. मंगलवार को हम दुकान नहीं खोलते हैं। We remain closed on Tuesday. चैप्टर 54 सड़क पर यानी ऑन द रोड। इस प्रकार के वार्तालाप में व्यक्ति को किसी दूसरे अपरिचित व्यक्ति या सहयात्री से विनम्रतापूर्वक और धीमी आवाज में अपने प्रश्न को पूछना चाहिए ताकि वो आपकी विनम्रता से प्रभावित होकर आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सके। पहला, ये रास्ता कहाँ जाता है? फर्स्ट, वेयर डज दिस रोड लीड टू? दूसरा, ये कहीं भी नहीं जाता, हम ही जाते हैं। सेकंड, इट डज नॉट गो एनीवेयर, रादर वी गो आवरसेल्व्स। पहला, आपकी बात पर मुझे हंसी आ रही है। फर्स्ट, आई फील लाइक लाफिंग एट वॉट यू सेड। पास में कोई अच्छा सा होटल है क्या? इज देयर एनी गुड होटल नियर बाय? दूसरा, हाँ है, मगर वहां का पानी अच्छा नहीं है। सेकंड, यस बट द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई देयर इज नॉट गुड। पहला, इस सड़क में कई स्पीड ब्रेकर्स हैं। देयर आर मैनी स्पीड ब्रेकर्स अलोंग दिस रोड। इस सड़क पर अकेले मोटर बाइक पर जाना अच्छा लगता है। इट फील्स गुड टू गो अलोन ऑन अ बाइक ऑन दिस रोड। दूसरा, वैसा क्यों? वाई सो? पहला, क्यों मालूम, थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए आप जोश में आ सकते हैं। वाई? बम्स ऑन द रोड में ड्राइव एक्साइटमेंट इन यू। इस सड़क के दोनों ओर एक झाड़ भी नहीं है। देयर आर नो बुशेस ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दूसरा, झाड़ नहीं है तो क्या, वहां एक नल है देखो। हाउ डज इट मैटर इफ देयर आर नो बुशेस? यू कैन नोटिस अ वाटर टैप। पहला, नल है तो क्या, उसमें पानी भी तो रहना चाहिए। वॉट इफ देयर इज अ वाटर टैप? इट शुड डिलीवर वाटर ऑल्सो। दूसरा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, वो सब छोड़ दो। आई बेग यू टू क्विट ऑल दोज एक्टिविटीज। पहला, इस सड़क द्वारा मैं रेलवे स्टेशन जा सकता हूं क्या? कैन आई गो टू द रेलवे स्टेशन यूजिंग दिस रोड? दूसरा, हाँ, सीधा जाइए। यस प्लीज गो स्ट्रेट। पहला, ये सड़क बहुत अच्छी है, आईने जैसी है। इट इज अ नाइस रोड लाइक अ मिरर। पहला, ये सही है, तो तुम अपना मुंह उसी में देख लो। इफ सो व्हाई नॉट सी योर फेस ऑन इट? दूसरा, आपको कुछ भी लेना हो तो इस दुकान में पूछ कर लीजिए। इफ यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग सीक आवर असिस्टेंस। पंसारी की दुकान में यानी एट ग्रोसरी शॉप। इस प्रकार के वार्तालाप में विक्रेता को अपने ग्राहक के साथ आत्मविश्वास के साथ वार्तालाप करना चाहिए जिससे वो ग्राहक को अपनी दुकान से उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। ग्राहक और दुकानदार के बीच वार्तालाप। ग्राहक, आपके पास अचार में लगने वाली सब वस्तुएं मिलती हैं क्या? कस्टमर, डू यू कीप आइटम्स नीडेड टू मेक पिकल? दुकानदार, हाँ जरूर। शॉपकीपर, यस श्योर। ग्राहक, आधा किलो सरसों का तेल दीजिए। कस्टमर, गिव मी हाफ अ केजी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। दुकानदार, और क्या? शॉपकीपर, व्हाट एल्स? ग्राहक, मेथी, धनिया, हींग और लहसुन है क्या? डू यू हैव फेनुग्रीक, कोरिएंडर, एसाफेटिडा एंड गार्लिक? चावल बेचते हैं क्या? डू यू सेल राइस? बासमती चावल क्या रेट है? हाउ मच फॉर बासमती राइस? एक बार इधर से ही मैं घर गृहस्थी में लगने वाली कुछ चीजें खरीद कर ले गया। वंस आई बॉट हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम दिस एरिया। आटा बहुत मोटा लग रहा है। द व्हीट फ्लोर अपीयर्स क्वाइट कोर्स। मुझे काजू, लौंग, किशमिश, इलायची आदि चाहिए। आई नीड कैश्यू नट, क्लव, ड्राई रेजिन, कार्डमम एक्सेट्रा। बेसन, मूंगफली, तिल, साबूदाना, ये वस्तुएं 1-1 किलो देना। गिव मी 1 किलोग्राम ईच ऑफ बेसन, ग्राउंडनट, सेसम
sago, etc. ये तराजू ठीक नहीं लग रहा है. This weighing machine does not appear balanced. दुकानदार, नहीं जी, ठीक है, मैं फिर से इसे तौल देता हूं. No, it is okay. I will weigh the items again for your satisfaction. ग्राहक, परसों दिया हुआ उड़द का दाल घटिया किस्म का था. The urad dal I bought day before yesterday appeared to be of poor quality. दुकानदार, हमारी चीजों को खराब कहने वाला आज तक कोई नहीं है. No one has blamed us for poor quality stock so far. ग्राहक, आपके पास की चीजों में कुछ मिलावट तो नहीं है? Are you sure there is no adulteration in your products or items? दुकानदार, आप ये बात यकीन से कह सकते हैं क्या? Can you say this for sure? ग्राहक, इस पनीर के पैकेट में कोई उपहार है क्या? Is there any free gift with this packet of cheese?